everyone, welcome to today's chemistry lesson for class 7 Icse. In this video, we'll explore some of the building blocks of matter, elements, compounds and mixtures. So let's begin. So at first, we will be discussing what is matter. Matter is anything that has mass and takes up space. मैटर एक ऐसी चीज है जिसके पास मास होता है और जो स्पेस लेती है. एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर. हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो मैटर की बनी हुई हैं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर की 3 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Matter can be classified into pure substances and mixtures. Matter pure substances और mixtures में classify हो सकता है. Pure substances have uniform composition. Pure substances के पास एक uniform composition होता है और mixtures are combination of substances. Mixtures are combination of substances in any ratio. We will be discussing it further. Matter is composed of tiny particles called atoms. Matter छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिन्हें हम कहते हैं atoms. Atoms combine in different ways to form different substances. This lesson will explore elements, compounds and mixtures. So let's begin with elements, compounds and mixtures. So now, classification of matter. Matter divides into pure substances and mixtures. Pure substances include elements and compounds. Pure substances के दो पार्ट होते हैं: elements और compounds. Mixture contain more than one substance physically combined. Mixture एक सब्सटेंस से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन करते हैं फिजिकली कंबाइंड किसी भी रेशियो में. Pure substances have fixed composition. Pure substances के पास fixed composition होता है और वो chemically combined होते हैं. Mixtures vary in composition. Elements cannot be chemically broken down. Elements जो होते हैं वो कभी भी आगे parts में तोड़े नहीं जा सकते, चाहे chemically या physically. Compounds are chemically combined elements. Compounds जो होते हैं वो chemically combined elements होते हैं जिनके पास fixed composition होता है, इसलिए वो pure substances का part है. Mixture retain properties of components. Mixtures जो भी particles mixture को बनाते हैं उनकी property mixture retain करता है. Pure substances have fixed uniform properties throughout. जो pure substances होते हैं उनके पास uniform properties होती हैं, वो अपने components की properties retain नहीं करते. Mixture may look uniform or separate into parts. Mixture uniform दिख सकते हैं पर separate हो जाते हैं आराम से parts में physical method से. Here you can see substances have 2 parts: pure substance, impure substance. Pure substances have 2 parts: elements, compounds. And element compound have 4 elements have 4 parts: metal, non-metal, metalloids, noble gases. Impure substance have 1 part: mixture. Mixture have 2 parts: homogeneous and heterogeneous. That we will be discussing further. So now pure substances. Pure substances have definite and constituent composition. जो pure substances होते हैं उनके पास definite और constituent composition होता है. 2 types. Pure substances के 2 part होते हैं: elements and compounds. Elements contain only one kind of atom. Elements के पास only one kind of atom होते हैं. Compounds are formed by chemical bonding of elements.
कंपाउंड्स केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट से बनते हैं, जिसकी वजह से वो प्योर सब्सटेंसेस में है, मैंने पहले भी बता दिया था। प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। प्योर सब्सटेंसेस पास फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, क्योंकि उनके पास कंपोजिशन भी सेम होता है। जैसे कि ये कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट वेरी। कंपोजिशन जो होता है प्योर सब्सटेंसेस का वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है थ्रू आउट। प्रॉपर्टीज रिमेन कॉन्स्टिट्यूएंट थ्रू आउट। प्रॉपर्टीज भी पूरे मिक्सचर में सेम होती हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो प्योर सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे कि सिर्फ कंपाउंड, एलिमेंट्स नहीं, सिर्फ कंपाउंड केमिकल मीन से ही सेपरेट हो सकता है, फिजिकल मीन से नहीं हो सकता। कंपाउंड्स डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एलिमेंट्स। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो एलिमेंट से अलग होती हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर बेसिस फॉर मोस्ट मटेरियल्स। प्योर सब्सटेंसेस में ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं जिनसे कंपाउंड बनते हैं। So now we will be discussing elements. Elements are pure substances made up of one type of atom. Elements ऐसी pure substances हैं जो सिर्फ एक तरीके के एटम से बनी होती हैं। Represented by chemical symbols. Example H, O, Fe. H is hydrogen, O is oxygen, and Fe is ferrum, that is iron. Cannot be broken down into chemically into simpler substances. जो एलिमेंट होते हैं वो ब्रोकन नहीं हो सकते, यानी मतलब कि टूट नहीं सकते आगे, केमिकली या फिजिकली दोनों मेथड्स ही सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसके आगे कुछ होती ही नहीं सिंपल सब्सटेंसेस। ओवर 100 एलिमेंट्स एग्जिस्ट अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल। 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। पूरे 118 एलिमेंट्स have unique properties like melting point, density and color. Classified as metals, non-metals or metalloids. Metals are shiny, malleable and conduct electricity. Metals जो होते हैं वो shiny होते हैं, malleable होते हैं और electricity conduct करते हैं. Non-metals are dull and poor conductors. जो non-metals होते हैं वो dull होते हैं और poor conductors होते हैं. Metalloids have mixed properties. Metalloids जो होते हैं उनके पास नॉन मेटल्स और मेटल्स की मिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है। एग्जाम्पल्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, आयरन फॉर कंस्ट्रक्शन, गोल्ड फॉर ज्वेलरी. लाइक दिस इज अ पिक्चर ऑफ आयरन एंड दिस इज कॉपर. दैट सिंबल इज Cu. Let's begin. Properties of elements. Single kind of atom only. Elements have single kind of atom. This is an important point. Cannot be divided by chemical reactions or chemical means or physical means. Unique atomic structure and properties. They have unique atomic structure और properties भी अलग होती हैं. Solid, liquid और gas at room temperature. ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होती है रूम टेम्परेचर पर. मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल. जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अनदर चैप्टर इन फिजिक्स. नॉन मेटल्स ऑफन इंसुलेट एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट को इंसुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. इंसुलेट मतलब कंडक्ट नहीं करना हीट को. सम एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ. कार्बन, ऑक्सीजन. कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए और कार्बन प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड. एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स. एलिमेंट्स फिक्स कंपोजिशन में केमिकली कंबाइन करते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए.
Elements influence color, taste and other material properties. Elements are the fundamental building blocks of matter. Elements फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनके बिना मैटर नहीं बन सकता, चाहे वो मिक्सचर हो या कंपाउंड हो. Made by chemically combining two or more elements. Compounds. Compounds made by chemically combining of two or more elements in fixed ratio. Fixed ratio of atoms H2O has 2 hydrogen and 1 oxygen, represented by chemical formulas. केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक ये एग्जांपल है वाटर का. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन. और जैसे कि फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स यानी वाटर का फॉर्मूला. डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं अपनी एलिमेंट्स की वजह से. कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते, सिर्फ केमिकल मेथड से. और एलिमेंट्स किसी भी मेथड से नहीं हो सकते. कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस. कंपाउंड्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते हैं, सिर्फ केमिकल रिएक्शंस, not physical. Compounds have unique melting and boiling point. Compounds के पास एक unique melting और boiling point होता है. Formation of compound involves chemical bonds. जैसे कि यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, जिससे वाटर बन रहा है. और यहाँ पर NaCl सॉल्ट में सोडियम और क्लोरीन एक साथ बॉन्ड हो रहे हैं, जिससे कि एक केमिकल बॉन्ड बनता है और सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कॉमन सॉल्ट बनता है. और ये अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दे आर बॉन्डिंग केमिकली. सो नाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड्स, जैसे कि अभी हमने देखा. एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, ग्लूकोज. Glucose has formula of C6H12O6, salt NaCl, carbon dioxide CO2 and water H2O. Compounds are basis for many materials and life processes. Compound बहुत ज़्यादा many materials के लिए यूज होते हैं और life processes में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. Now we will be discussing properties of compounds. Fixed composition and definite chemical formula. Different physical and chemical properties from component elements. इनके पास जो एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टीज नहीं होती. जैसे 2 एलिमेंट से बना है तो दोनों की मिक्स्ड होती है. जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन भी कंबशन को सपोर्ट करता है और ऑक्सीजन भी करता है, पर वाटर एक्सटिंग्विश करता है. ये इसलिए यूनिक प्रॉपर्टीज इनके पास. ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर. होमोजेनस मतलब कि एक साथ मिले हुए, मतलब सारे में एक जैसे एक जगह पे दूसरा कंपोजिशन, दूसरी जगह पे दूसरा कंपोजिशन, ऐसा नहीं है इनमें. इनमें एक ही जगह पर सारा सेम कंपोजिशन है. कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेसेस. ये सिर्फ केमिकल प्रोसेसेस से सेपरेट हो सकते हैं. एनर्जी ऑफन चेंजेस ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन. एनर्जी कंपाउंड फॉर्मेशन के एनर्जी हमेशा या ऑफन यूज होती है कंपाउंड फॉर्मेशन में. कंपाउंड्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, एलिमेंट्स की तरह. ईच कंपाउंड हैज यूनिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. कंपाउंड्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस. कंपाउंड केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. एलिमेंट्स भी करते हैं पर कम करते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं करते, जैसे कि नोबल गैसेस. कंपाउंड्स फॉर्म एसेंशियल सब्सटेंसेस नीडेड फॉर लाइफ.
कंपाउंड कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस फॉर्म करते हैं जो लाइफ के लिए नीडेड होती हैं। मैनी कंपाउंड्स फ्रॉम एवरीडे मटेरियल लाइक प्लास्टिक्स, मेडिसिन्स एंड सॉल्ट्स। कुछ प्लास्टिक्स, मेडिसिन्स और सॉल्ट्स कंपाउंड्स ही होते हैं जो हमारे डेली यूज में बहुत यूजफुल है। मिक्सचर्स कंटेन 2 or more substances physically combined। ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंटेन करते हैं फिजिकली कंबाइंड। कंपोनेंट्स कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट्स के पास देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि किसी एलिमेंट से दो एलिमेंट से मिक्सचर बना और दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी उस मिक्सचर में, मतलब यूनिक प्रॉपर्टीज नहीं है। मिक्सचर कैन बी सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस, लिक्विड गैस या लिक्विड सॉलिड या गैस सॉलिड। नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स इन मिक्सचर्स। कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता कंपोनेंट में, किसी भी रेशियो में, इसलिए कोई केमिकल फॉर्मूला भी नहीं होता। मिक्सचर कैन बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। मिक्सचर्स के दो पार्ट्स हैं, होमोजेनस या हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं उनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, जैसे कि सॉल्टी वाटर, मतलब हर जगह सेम वो भरा होता है, मतलब सेम कंपोजिशन रहता है, मतलब मिला मिला सा लगता है सारे में। हेट्रोजेनस मिक्सचर है विजिबली डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि ये सलाद, इसमें यहाँ पे जैसे यहाँ टमाटो है, यहाँ थोड़े कम है, ये होता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर्स फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। मिक्सचर डू नॉट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग। मिक्सचर के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती जिनकी वजह से उनके पास केमिकल बॉन्डिंग हो। कंपाउंड्स में ये चीज़ उल्टी होती है। कॉमन मिक्सचर्स इंक्लूड एयर, सेलिन वाटर एंड सॉइल। सेलिन वाटर से मतलब सॉल्टी वाटर, सी का। Now we will be discussing mixture and types. The first type is homogeneous mixtures. Homogeneous mixtures are uniform throughout. जैसे अभी मैंने पहले बताया कि होमोजेनस मिक्सचर्स में सारे में सब कुछ मिला हुआ होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर्स सॉल्ट वाटर, एयर, शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। Heterogeneous mixtures have visibly different parts, जैसे कि सलाद, muddy water, sand, iron fillings. Homogeneous mixtures are also called solutions. Homogeneous mixtures solution भी कहलाते हैं और heterogeneous mixtures जो होते हैं वो separate हो जाते हैं easily. Composition of mixtures can vary widely. जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर्स का वो वेरी करता है, मतलब किसी भी रेशियो में। जैसे सॉल्टी वाटर में 100 रेशियो 500 रखते हैं, जैसे 100 है सॉल्ट और 500 है वाटर, और कुछ लोग 10 रेशियो 500 रख लेते हैं, तो इसलिए ये कहीं भी चेंज हो सकते हैं। मिक्सचर्स कैन इन्वॉल्व सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड में थे। साइज ऑफ पार्टिकल्स डिफर्स इन हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनमें साइज डिफरेंट होता है पार्टिकल्स का, जैसे कि सैंड विद आयरन फिलिंग्स। जैसे ये सैंड है और यहाँ पे ये है एक आयरन फिलिंग, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। Some mixtures appear homogeneous but are heterogeneous at microscopic scale. Example milk. Milk होमोजेनस दिखता है पर हेट्रोजेनस है, क्योंकि उसमें अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखें तो जैसे कि ये मिल्क है तो यहाँ पर छोटे छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फ्लैट मॉलिक्यूल्स। So let's begin to next slide.
Separating techniques for mixtures. First separating technique is hand picking, removing large impurities like stone from grains, bran from grains, wheat grain. ब्रैन मतलब व्हीट के ऊपर जो छिलका होता है. थ्रेशिंग, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक. जो अभी मैंने ऊपर बताया हैंड पिकिंग, वो थ्रेशिंग भी कहलाता है जब ग्रेन को स्टॉक्स में से हटाते हैं, लाइक ब्रैन फ्रॉम व्हीट. विनोइंग, यूजिंग विंड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन. ये तीनों ग्रेन्स के लिए यूज हो सकते हैं. सीविंग, separating particles of different size using a sieve, like bran from atta. Filtration, removing insoluble solids from liquids, mud from water by filter paper. Sedimentation, allowing heavier particles to settle at bottom, फिर उसके बाद में ऊपर का पानी हटा देंगे. Decantation, pouring of clear liquid after sedimentation. These both are relative. This is the first process, these both, and this is second process. Evaporation, removing liquid to get solid residue, salt from seawater. पर इसमें एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि उनका अलग अलग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर. जैसे कि वाटर का अलग है, सॉल्ट का अलग है. अगर दोनों का आसपास होता तो सॉल्ट भी वाटर के साथ ही चले जाता, इसलिए सेपरेशन नहीं हो पाता. मैग्नेटिक सेपरेशन, यूजिंग मैग्नेट टू रिमूव मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकेल एंड सो ऑन. मैग्नेटिक सेपरेशन में जो होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल सम सैंड में आयरन फिलिंग्स, जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो तो मैग्नेट के साथ लग जाएंगी. एंड नाउ क्रिस्टलाइजेशन, गेटिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम सॉल्यूशन. क्रिस्टलाइजेशन जो होता है उसमें प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स निकलते हैं एक सॉल्यूशन में से. ये एक एडवांस्ड प्रोसेस होती है. सो these were some methods of separation of mixtures. Now thanks for watching, like and subscribe, and if you have any doubt you can ask in comment. Thank you.